Hey guys, this is Dr. Shweta again. Welcome or welcome back to my channel. And today's video, I will be talking about the 45 days preparation strategy for the upcoming FMGE. And I hope this video will be helpful for you. This is just a suggestion or advice from a FMG to the FMGs out there. And I hope this video will be helpful for you. And all the ones who are new to my channel, please do subscribe to my channel for more such informative videos. So let's get started, guys. Alright guys, so here is the plan for you, the FMG January 26 aspirants, and this is the 45-day plan. Your exam is scheduled on 17th of January. So from today itself, it's about 59 days, and out of which I made 45 days plan. Remaining days you can plan according to yourself. The last revision, the final revision, you can plan according to yourself. I'm trying to advise for the 45 days from now. So I have divided those 45 days into two revisions. First revision is of kind of 30 days and second revision is 14-15 days most probably. So here if we take a look on the first revision, so I have given some days. I have divided the subjects into days, like with kind of integration. If you read it, then you can remember it very well. So the first three subjects are of course the typical subjects like anatomy, physio, biochemistry. I have given one day to each, like one day for anat, one day for physiology, and one day for biochemistry, because now it's only time of revision. And considering you are only doing the revision stuff now, the revision videos or the revision notes, and of course the MCQs, so according to that I made this schedule. So one day for anatomy, one day for physiology, and one day for biochemistry. Next up are the pathology, pharma, medicine, pedia, obs gynae, PSM, micro, FMT, and surgery. These are the main subjects you have to focus, and you have to give a good time for revision as well. Even you have less time, you have to give a good amount of time to these subjects. So I have given 2 days to each subject, and in those 2 days you have to cover everything, like the notes, videos. If you want you can watch, or if you are confident enough that now you don't need to watch the videos as of now for this revision, so you can skip the videos, but MCQ and notes you have to do. It's mandatory. Then for ortho in one day is doable considering you have revised it well. And next up are ENT and optha, 2 days each. And then radio, anesthesia, psychiatry, derma, these are kind of low weightage and also the low सिलेबस सब्जेक्ट एज वेल. इनका बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती और वही होपफुली वही एग्जाम्स में आती भी है. सो काइंड ऑफ रिपीटेड टॉपिक्स भी होते हैं. सो यू कैन गो विथ one day each and you can revise it in a one day is I think quite enough according to me. Then these are this is the 30 days revision. Okay, then the second revision I've made is according to the integration. Now the time has very less, and considering you have given enough amount of time to the main videos and main notes, then I think you should go for integration when your जब एग्ज़ाम का दिन पास आ रहा होता है, तो यू शुड आई थिंक गो फॉर इंटीग्रेटेड टॉपिक्स, क्योंकि उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक अच्छे से कवर होते हैं. एंड वो जो कनेक्टेड टॉपिक्स है उसके वजह से आपको रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन के लिए एक आई थिंक वो ठीक होता है. मैंने अपने टाइम पे यही किया था, तो आई कैन एडवाइज यू दिस ओनली गाइज. सो अगेन anatomy, physio, biochemistry, so one day for each subject, and again you are revising it well. I am giving a lot of time for these short subjects even because these subjects have क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस है वो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं या कभी कभी थोड़े लॉजिक वाले हिंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं. तो इट्स बेटर कि हम लोग अच्छे से रिवाइज कर ले और उसको अच्छा टाइम दे के अच्छे से रिवाइज करें. सो 3 दिन है एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री के लिए. Next up is patho, pharma, and psychiatry. I have added psychiatry because psychiatry has some connection with pharmacology, the medicine and all. So you can revise it in 2 days. Patho, pharma, and psychiatry, you can revise it together in 2 days. Then medicine, pedia, and obs gynae. I have given 3 days for this because here are three major subjects, but
आई थिंक जब हम लास्ट वाली रिवीजन कर रहे हैं तो मोस्टली हम लोग जो रिपीटेड टॉपिक्स है और जो याद रखने वाली चीज़ें हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उनके जैसे वन लाइनर्स होते हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उन्हीं को हम सिर्फ रिवाइज करते हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ 3 दिन दिए हैं। आई नो टाइम हमारे पास बहुत कम है, सो उसी अकॉर्डिंग मैंने शेड्यूल बनाया है। सो मेडिसिन, पीडी एंड ऑब्सगाइनी 3 days टुगेदर, देन एनेस्थीसिया, ईएनटी एंड ऑप्था फॉर 2 days, सर्जरी, ऑर्थो, रेडियो, अगेन अ गुड इंटीग्रेशन, और ये भी 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है। आप सर्जरी को पूरा 1 दिन देखिए, ऑर्थो रेडियो को 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। देन द रिमेनिंग थिंग इज पीएसएम, माइक्रो, एफएमटी एंड डर्मा, एवरीथिंग इन 3 days। सो ये बस एक सजेशन है गाइज, आप इसको शफल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो उसको उतने दिन दे के, जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो चुका है ऑलरेडी, यू हैव रिवाइज इट वेल लाइक 4 to 5 times, इफ यू रिवाइज इट, यू रिमेंबर एवरीथिंग, तो आप उसको कम दिन देके दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा दिन भी दे सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ द 45 days प्लान आई हैव फॉर यू। एंड इफ़ यू जो 15 दिन है आगे के, उनके उस टाइम आप, अगर आपको फॉलो करना है तो आप ये जो सेम हमने जो ऊपर अभी सेकेंड वाला जो शेड्यूल देखा वो आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो एक और जो शेड्यूल है ये मैंने बनाया है, इसमें सिर्फ सेम ही है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ थोड़ा मैंने सब्जेक्ट जो है वो स्प्लिट करके और दिए हैं, ताकि अच्छे से लास्ट टाइम की जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए। सो एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री को 2 दिन है, पैथोफार्मा को 2 दिन है। इसमें मैंने सब्जेक्ट्स थोड़े से स्प्लिट कर दिए हैं। और सर्जरी, ईएनटी, ऑप्था इज़ बिकॉज एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ सर्जिकल थिंग, सो आप उसको एनाटमी, सर्जरी के एस्पेक्ट से भी उसको याद कर सकते हो। एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। सो दिस इज़ द 14 days प्लान, जिसमें मेडिसिन, पीडिया को 2 दिन है, ओब्सगाइनी, माइक्रो और पीएसएम को 3 दिन है। ओब्सगाइनी, माइक्रो, पीएसएम भी क्यों? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू, काइंड ऑफ कनेक्टेड टू ईच अदर, सो यू कैन ट्राई दिस। और जो लास्ट का 1 दिन बचेगा एग्ज़ाम का, उस 1 दिन में आपको जो आपने अपने लिए नोट्स बनाए हैं सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। रिवाइज दो ओनली दोज नोट्स। अगर कोई नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो जो आपको वन लाइनर्स वगैरह आपके जो जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, उस सोर्स से जो आपको वन लाइनर्स मिलेंगे या जो लास्ट मिनट रिविजन्स के पॉइंट्स मिलते हैं, आप सिर्फ उसको रिवाइज करके जाओ विदाउट एनी प्रेशर। आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है बिकॉज आप ऑलरेडी इतना कर चुके हो। अगर आप 1 दिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अगर उस चीज़ का प्रेशर लोगे, उस चीज़ को अगर उसको इतना ओवरवेल्म फील करके अगर आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो शायद गलती हो सकती है एग्ज़ाम में। सो बेटर टू अवॉइड द मिस्टेक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल फॉर योर एग्ज़ाम। सो दिस इज़ द शेड्यूल गाइज, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट हो चुका है, जो सब्जेक्ट अभी बाकी है, अकॉर्डिंगली आप डेज ज़्यादा कम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर you, and just a piece of advice at the last of this video is just don't take that much of pressure। जो भी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस का आपको अभी प्रेशर हो रहा होगा, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं और आप इससे पहले भी प्रिपेयर करते आ रहे हो, और मुझे लगता है कि आप उसी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे, अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे, तो उसकी वजह से आपका टाइम और आपकी एनर्जी स्पेंड होगी ज़्यादा, जो कि आप अगर प्रिपरेशन में लगाओगे तो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लोगे। बिकॉज दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स डिमांड्स योर माइंड टू बी शार्प। आपका जो भी नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। काफ़ी सारे यहाँ रिपीटर्स है जो 2 से ज़्यादा बार उन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है एंड स्टिल दे आर नॉट इवन एबल टू पास द एग्ज़ाम। और वो इसी वजह से आई थिंक ये भी एक उसमें पॉइंट होता है कि जब एक बार में जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई है तो ऑफकोर्स वो एग्ज़ाम का प्रेशर का एंग्जाइटी आपको स्टार्टिंग से ही होगी। लेकिन आई थिंक, और मैं सिर्फ आपको ये एडवाइस कर सकती हूँ कि आप अभी इस पॉइंट पे उस एंग्जाइटी को इग्नोर करके जस्ट फोकस ऑन व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग ओनली टू परफॉर्म बेटर। और अगर आप अभी उसको उसके बारे में अगर सोचोगे तो शायद कहीं ना कहीं वो आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा एंड यू कैन नॉट अफोर्ड कि अभी इस पॉइंट पे आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो। सो टू गेट गुड रिजल्ट यू शुड प्रिपेयर वेल एंड विदाउट एनी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बिकॉज आप इतनी दूर इस चीज़ के लिए तो नहीं आए हो कि फिर से आपको वापस आना पड़े। सो
प्रिपेयर वेल एंड नो फोमोज आर अलाउड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जो भी सब्जेक्ट हो चुका है वो हो चुका है, अभी उसकी रिविजन करनी है। जो सब्जेक्ट बाकी है वो एक्चुअली बाकी है और उसके ऊपर आपको काम करना है। आपके जीटी के स्कोर कम आ रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट में, पीवाईक्यू टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं, नेवर माइंड। मैंने एफएमजी प्रिपरेशन के पूरे 6 महीने इसी कमरे से, इसी डेस्क से, इसी चेयर से प्रिपेयर किया था, इसलिए मैं आप लोगों का जो भी ये प्रेशर वाला जो भी चीज़ है वो मैं समझ सकती हूँ। और इसीलिए मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जस्ट स्टे काम। मैंने अगर किया है तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि काम रह के, शांत रह के जितना आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ये मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड नो एग्ज़ाम इज़ bigger than your mental peace, so just maintain the calm and concentrate on your studies, focus on your studies. So this is it for today's video guys. I hope आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी for your schedule and for maintaining your emotions during this whole preparation phase. And any doubt you can comment down, I will surely try to help you out. So thank you so much and take care guys.